Assalamualaikum everyone. In today's lecture, we are going to discuss about the electrocardiogram, and this chapter is 94th chapter, and this is from the JP book. Okay, so before we are going to start our lecture, I request you to please subscribe to my channel, like my videos, and also press the bell icon to get the notification of all the videos which I have uploaded. So in the previous lecture we have discussed about the cardiac muscle, we have discussed short introduction about the heart, about the blood vessels, and we have studied all the properties of the heart. But now in this lecture we are going to start the ECG. So first we are going to define it, that what are the terms of it. So first is the definition of electrocardiography. So electrocardiography is actually a technique in which the electrical activities of your heart is going to be studied. So actually you know very well that the electrical current and the electrical activity of the heart is being produced by your what SA node. And you know very well that we have this technique of measuring this electrical activity, and this technique is called as electrocardiography. So electro now we discuss that what is the discoverer of this technique, and this was discovered by a Dutch physiologist, and whose name was Rethouwen Willem. So it discovered and the in electrocardiography, and it is also known as the father of electrocardiogram, means ECG. So what is now, first we discuss electrocardiography, which is a technique. Okay, now we discuss electrocardiograph, and it is an instrument. Okay, so the electrocardiograph is an instrument or a machine by which you are going to measure your electrical activity of your heart. Okay, now you discuss about the electrocardiogram. First we discuss electrocardiography, then we discuss electrocardiograph. Now we are going to discuss electrocardiogram, that what it is and what the things are included in it. So electrocardiogram, it could be abbreviated as ECG or EKG, but EKG is the abbreviation in the old area. Okay, in old era it is called as electrocardio, is start from K, not from C. So in the Dutch. Okay, so it is recorded. So electrocardiogram is the record or graphical registration of the electrical activity. So you can easily or simply say that it is a record of your electrical activity. So electrocardiography is a technique by which electrical activity of your heart is being studied, and the discoverer of it is E. Willem, which is the father of electrocardiography. Then we discuss what is electrocardiograph, which is an instrument used to find out the electrical activity of your heart. Then at the last we discuss electrocardiogram, and which is the record of your electrocardio activities. Now we discuss what is the uses of ECG, and it is useful for very diagnosis of various kind of diseases. For example, heart rate, it find out the heart rate, normal abnormal electrical conduction, and poor blood flow to your heart muscle, which can also be called as ischemia. And then the heart attack. So these things are discovered by ECG. Then six is the coronary heart diseases, and seventh is the hypertrophy of the heart chambers. So all the diseases which are about a heart is going to discover by this ECG. Now we discuss what is the characteristics, what is the electrocardiographic grid. Okay, so it is the paper which is used for the recording of ECG. You know, ECG is like this like form. Okay, in this like form. So the paper on which you are recording it is the electrocardiographic grid. So the ECG machine amplifies the electrical signals. So ECG machine is what it's going to do, it discover or it detect what kind of electrical signals is being produced by your heart. Then it record all of these signals on the ECG paper. So this ECG paper has what lines, ठीक है, horizontal and vertical lines at the regular interval of 1 millimeter, and every fifth line is a 5 millimeter
थिक। तो क्या हो रहा है कि एवरी एट द इंटरवल ऑफ एवरी वन आफ्टर मीन्स दिस इज द डिस्टेंस ऑफ 1 millimeter, after this 1 millimeter a line is present, horizontal b and vertical b, then again after 1 millimeter again vertical and the horizontal lines is present, then again after 1 millimeter vertical and the horizontal. So this is the arrangement of ECG paper as I can draw here for you. So that likes is the structure of your electrocardiograph, which is your paper. Okay, graphy is a technique, electrocardiograph is the instrument, electrocardiogram is the record of your electrical activity, and last is the electrocardiograph, which is the paper on which you are recording. So now at the last we have some durations for it. For example, if you see the time duration of ECG on horizontally x-axis, so in the x-axis 1 millimeter is in the 1 millimeter the time is 0.01 second. So your heart will take to cover the distance of 1 millimeter, it would take 0.04 seconds, and the amplitude values are also given. So now you can discuss speed of the paper, that how and how much at the velocity the paper is moving. Okay, or which paper? Electrocardiographic grid paper. Okay, so the movement of a paper through the machine can be adjusted by two speeds. Okay, it could be the speed of 25 millimeter per second, and it could be the speed of 50 millimeter per second. So the speed of paper during the recording is fixed, and it is 25 millimeter per second. If the heart rate is very high, then the speed is changed to 50 millimeter per second. So this is the speed of paper which you have to mention it on your paper. Okay, so you have to learn it. Now I am allow you to learn it. What is the speed of your ECG paper? Okay, so after writing the ECG paper grid, you will write the speed of ECG paper, and for the normal heart rate, the speed of ECG is about 25 millimeter per second. But if your heart rate is going to increase, then the speed is also increased to 50 millimeter per second. कि एक सेकंड में 450 millimeters मतलब चल रहा है. ठीक है. Now the electrical leads will be discussed in the next lecture. Now but in this lecture we are going to discuss what? Yes, waves of the normal ECG. के ECG की normal waves क्या हैं, या हम कह सकते हैं कि characteristics of the normal ECG. So first is the your ECG curve is composed of some kind of waves, some kind of complexes, some intervals, and some segments. So all of these are actually the component of your what? ECG. So what are the waves of your ECG? You know very well the waves of ECG are P wave, Q wave, R wave, S wave, and T wave. Okay, so these are the major wave, and the name of these waves are given by a scientist which is called as Ethon. Okay, this is the Ethon who gave the name of all the waves, which is P, Q, R, S, and T. Okay, and so the ECG is starting from the middle of the English alphabet P instead of starting from the A. ठीक है, तो ये इतनी important बात नहीं थी, but you have to discover that what are the waves of ECG and who scientists give this name. Now we move on to the complexes. What are the major complexes of ECG? So major complexes of ECG are P wave, arterial complex, initial ventricular complex, final ventricular complex, and the ventricular complex. So these are the four complexes of your ECG. But arterial complex, initial ventricular complex, final ventricular complex, and at the last there is the ventricular complex. So arterial complex include P wave. Initial ventricular complex include QRS complex and wave matlab, and final ventricular complex include only T wave, and your ventricular complex include QRS and T wave. Okay, so now I am give you the diagram of ECG.
So this is the diagram of ECG as I am zooming on it. So this is our P wave as it is shown. This is the Q wave little downward, this is the R, this is the S and this is the T wave. ओके, ये सारी क्या है, वेव्स हैं. उसके बाद अगर आप कॉम्प्लेक्स देखें तो P वेव, ये जो P वेव है आपका, मैं अगर कलर इसका चेंज कर दूं ताकि आपको कलर का डिफरेंस पता लगे, तो ये जो P वेव है ये आपका क्या बना रहा है, आर्ट्रियल कम्प्लेक्स बना रहा है. ठीक है, और ये जो Q R और S वेव है जो जो इस तरह से, ये इस तरह से जा रहा है, ये आपका क्या बना रहा है, इनिशियल वेंट्रिकुलर कम्प्लेक्स. खाली टी वेव आपका फाइनल वेंट्रिकुलर कम्प्लेक्स बना रहा है. इसके अलावा अगर आप सिर्फ वेंट्रिकुलर कम्प्लेक्स को देखें तो क्यू आर एस और टी वेव ये सारे क्या बना रहे हैं, वेंट्रिकुलर कम्प्लेक्स को बना रहे हैं. आई होप कि ये चीज़ें आप लोगों को अब समझ में आ गई होंगी. यहाँ से अब हम लोग इस डायग्राम से आप मुझे बताएंगे कि कौन कौन सी वेव है. ये थी हमारी क्या, पी वेव. ये क्या था, क्यू वेव. ये हमारे पास आर वेव, ये एस वेव और ये क्या था, टी वेव. तो पी वेव हमारा क्या बना रहा है, आर्टेरियल कम्प्लेक्स बना रहा था. क्यू आर और एस ये हमारा क्या बना रहा है, इनिशियल वेंट्रिकुलर कम्प्लेक्स. टी वेव खाली हमारा बना रहा है फाइनल वेंट्रिकुलर कम्प्लेक्स. जो टोटल वेंट्रिकुलर कम्प्लेक्स बन रहा है वो किससे बन रहा है, क्यू आर एस और टी वेव से बन रहा है. ठीक है, सो अब हम लोग चलते हैं. हाँ जी, तो अब हम लोग एक एक करके इन सारी जो वेव्स हैं इनको डिस्कस करेंगे. अच्छा, इंटरवल्स की अगर मैं आपको बात बताऊँ ना, तो इंटरवल्स भी हमारे पास 3 हैं. मैं उसी डायग्राम के ज़रिए आपको दिखा देती हूँ कि कौन कौन से इंटरवल हैं. ये देखिए आप लोग, तो हमारे पास एक इंटरवल है P to R का इंटरवल. यहाँ पर आप देख सकते लिखा हुआ है, ये P से लेकर और ये R तक, ये P है और ये R है. P से R तक लेके ये जो इंटरवल बनता है इसको हम कहते हैं P to R इंटरवल. दूसरा इंटरवल है Q से T तक, ये Q पॉइंट है, ये T पॉइंट है. तो इन दोनों के दरमियान में जो एक इंटरवल बनता है इसको हम कहते हैं QT इंटरवल, यहाँ लिखा हुआ है. तीसरा जो है वो R to R इंटरवल होता है, और वो किस तरह से होता है, जैसे ये एक R वेव बनी है ना, अब इसके आगे एक दूसरी R वेव बनेगी. किस तरह बनेगी, पहले एक P वेव बनेगी, उसके बाद P वेव के बाद एक Q R और इस तरह बनेगा. तो ये एक और R इंटरवल आ गया. अब इस R और इस R के दरमियान में जो फासला आता है इसको हम कहते हैं R to R इंटरवल. सो इस तरह ये 3 इंटरवल बनते हैं. अच्छा, एक सेगमेंट बनता है, एक सेगमेंट बनता है, उस सेगमेंट को हम कहते हैं एस टी सेगमेंट. ठीक है, एस से लेकर टी के दरमियान. ठीक है, ये यहाँ पर ये एस है और ये टी है, तो इस एस और टी के दरमियान में ये इंटरवल बनता है. इसको हम कहते हैं, ये इंटरवल नहीं है, ये सेगमेंट है. ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. सो आई होप कि ये चीज़ आपको डायग्राम से ही क्लियर हो गया होगा. अब हम जब नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पे चलेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है वो समझना इजी हो जाएगा. सबसे पहले जो है हम लोगों ने वेव्स को डिस्कस कर लेना है. तो अगर हम पी वेव की बात करते हैं तो ये एक पॉजिटिव वेव है, फर्स्ट वेव है. ईसीजी में जो सबसे पहले वेव बनती है वो हमारी पी वेव ही आती है. उसके बाद ये चीज़ ये है कि ये पॉजिटिव वेव है हमारे पास, और काज इसकी क्या है, मतलब ये क्यों बन रही है. तो अगर हम उसकी बात करते हैं तो ये डीपोलराइजेशन, आर्ट्रिया की जब डीपोलराइजेशन होती है, ठीक है, तो ये वेव बनती है. ठीक है, जब यहाँ मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया है ये चीज़ कि ये जो पी वेव बन रही है, तो इस पी वेव के दौरान में आर्ट्रियल कम्प्लेक्स बन रहा है. आर्ट्रियल कम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि जो आपके हार्ट का आर्ट्रिया है वो डीपोलराइज हो रहा है. और उसका डीपोलराइज होने का मतलब क्या है, यानी सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा है उस जगह पर, और वो पॉजिटिव. डीपोलराइजेशन हमेशा क्या होता है कि वो पॉजिटिव होता है, और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. ठीक है, अब हम वहीं पर चलते हैं जहाँ हम थे. ठीक है, तो काज हमने देख ली, इसको इसके अंदर आर्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी आता है. पहली वेव है, पॉजिटिव वेव है. और इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि आर्ट्रियल जो रीपोलराइजेशन होती है ना, आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन के साथ साथ आर्ट्रियल रीपोलराइजेशन इसी के साथ ही मर्ज हो जाती है. तो हम कह सकते हैं कि आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन भी हो रही है, और आर्ट्रियल रीपोलराइजेशन को हम काउंट ही नहीं करते. ठीक है, अच्छा, आर्टरी रीपोलराइजेशन वेंट्रिकुलर कम्प्लेक्स के साथ मर्ज हो जाती है.
ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि इट मर्जेस विद द वेंट्रिकुलर कम्प्लेक्स के जो QRS कम्प्लेक्स होता है उसके साथ मर्ज हो जाती है। हर वेव का अब आपको आगे ड्यूरेशन दिया गया है, आगे उसका एम्पलीट्यूड दिया गया है। तो आपने ड्यूरेशन देखने रहा है, जैसे पी वेव का ड्यूरेशन 0.1 सेकेंड्स के लिए है, और अगर आप इसके एम्पलीट्यूड की बात करते हैं तो इसका एम्पलीट्यूड 0.1 से लेकर 0.12 मिलीवॉल्ट तक है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड और ड्यूरेशन आप लोग याद कर लेंगे। इसके अलावा बस ये जो इसकी सिग्निफिकेंस दी हुई है तो ये चीज़ आप नहीं करेंगे। ठीक है, इतना भी राइट आप कर लें तो आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, अच्छा अब QRS कम्प्लेक्स पे जाते हैं। QRS आपका कौन सा कम्प्लेक्स था, अब आप बताएंगे। यस, इनिशियल वेंट्रिकुलर कम्प्लेक्स को हम QRS कम्प्लेक्स कहते हैं। अच्छा, अब इसमें ना अपने वेव पॉजिटिव है या नेगेटिव है इस चीज़ को भी देखना है। जैसे पी वेव हमारी पॉजिटिव वेव थी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास जो आर वेव क्यू वेव है वो स्मॉल नेगेटिव वेव है, जबकि अगर हम लोग बात करते हैं आर वेव की तो वो भी पॉजिटिव है और एस वेव भी स्मॉल नेगेटिव है। अब यहाँ पर मैं आपको ना एक क्लू देने वाली हूँ, क्लू मैं देती हूँ आपको और डायग्राम से समझाती हूँ। ये आप लोग देख रहे थे। अच्छा, अब पी वेव जो है वो ऊपर की तरफ मूव किया है। जो भी वेव ऊपर की तरफ मूव करेगी उसको हम पॉजिटिव कहेंगे। ठीक है, अब जब हम क्यू वेव की बात गए थे उसकी तरफ जा रहे थे तो उसमें आप लोगों ने देखा था, ठहरे मैं कलर जो है वो चेंज कर लेती हूँ। तो जी अब देखें कि पी वेव कहाँ गई, ऊपर की तरफ गई। ऊपर की तरफ जो जाएगा वो है पॉजिटिव। उसके बाद हम जब क्यू वेव पे आते हैं वो थोड़ा सा नीचे जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि क्यू वेव स्मॉल नेगेटिव है। ठीक है, थोड़ा सा ये नीचे आया है। उसके बाद आर वेव अगेन ऊपर की तरफ जाता है तो उस वजह से हम उसको कहते हैं कि वो पॉजिटिव है। फिर वो नीचे आता है और वो बनाता है हमारे पास एस अगेन अच्छा खासा मतलब नीचे आया तो हम एस को कहते हैं वो नेगेटिव है। फिर उसके बाद हम ऊपर जाते हैं और हम लोग टी वेव बनाते हैं तो टी वेव भी ऊपर की तरफ आता है और यूँ जाता है तो टी वेव भी हमारी पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस तरह से ये याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी वेव पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है। अब आपको अच्छी तरह याद रहेगा। ठीक है ना, ये चीज़ तो अच्छा पी वेव पे हम आ गए थे। अच्छा, इसकी कॉज क्या है, पहले हमने बताया कि आर्ट्रिया जो कम्प्लेक्स या पी वेव है उसकी कॉज क्या थी, आर्ट्रिया की डीपोलराइजेशन। अब ये QRS कम्प्लेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर डीपोलराइजेशन होती है वेंट्रिकल्स की। ठीक है, अब वेंट्रिकल्स ने डीपोलराइज होना है और वेंट्रिकल्स के मसल ने। ठीक है, यहाँ पर मसल्स की बात हो रही है ना, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल तो वहीं पर रिड्यूस होना है तो वहाँ पर डीपोलराइजेशन हो रही है और उसकी वजह से ये QRS कम्प्लेक्स बन रहा है। ड्यूरेशन और एम्पलीट्यूड का मैंने आपको कहा था कि वो चीज़ आप याद करेंगे कि ड्यूरेशन इसका 0.8 से लेकर 0.10 तक है, और एम्पलीट्यूड की अगर आप बात करते हैं तो क्यू वेव का, आर वेव का, एस वेव का, इन तीनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। जैसे क्यू का 0.1 से 0.2 है, आर का 1 है, 4 का 0.4 है। तो आप लोग ने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, मैं लेक्चर के एंड तक आपको ये ड्यूरेशन और ये एम्पलीट्यूड हर वेव का, हर कम्प्लेक्स का ज़बानी याद करवा दूँगी। ठीक है, सो अभी के लिए आप इसको जो है वो स्किप कर दें, बट आगे जाके मैं आपको सारा समझाऊँगी। ठीक है, सो आई होप कि ये दोनों डायग्राम्स भी आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, ये कुछ केसेस हैं, कुछ चीज़ें उन्होंने दिखाई हुई हैं कि जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो। जैसे यहाँ पर देखें टी वेव थोड़ा ज़्यादा ऊपर आ गया, पी वेव कुछ ज़्यादा ही नीचे है। यहाँ देखें पूरी कर्व ही उल्टी बनी है, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर टी वेव कुछ ज़्यादा ही ऊपर है। टी वेव में क्या हो रहा है हमारे पास, ठीक है, अभी मैंने आपको नहीं बताया वैसे कि टी वेव में क्या हो रहा है, लेकिन एक्चुअली जो टी वेव जो हमारी बनती है उसमें रीपोलराइजेशन होती है वेंट्रिकल्स की। तो अगर टी वेव ज़्यादा ऊपर जा रहा है इट्स मीन क्या है कि वेंट्रिकल्स ज़्यादा रीपोलराइज कर रहे हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ आई, यहाँ पर भी कर्व पूरा टेढ़ा आ गया। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कितना ज़्यादा वेरिएशंस, मतलब हर पेशेंट के अंदर इस तरह की वेरिएशंस आ जाती हैं। ठीक है, और इसी वेरिएशन से हमें पता लगता है कि उसका क्या है। जैसे अगर किसी पेशेंट का टी वेव बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, हमें पता लग गया कि उसका वेंट्रिकल्स में रीपोलराइजेशन ज़्यादा हो रही है। अगर वेंट्रिकल्स में रीपोलराइजेशन ज़्यादा हो रही है इट्स मीन कि उस पेशेंट के वेंट्रिकल्स में ही कोई प्रॉब्लम है। ठीक है ना, इट्स मीन कि उसका वेंट्रिकल ही कुछ ना कुछ डिफेक्ट ला रहा है। तो हमें पता लग जाता है कि इस तरह के पेशेंट के हार्ट के किस चैम्बर के अंदर क्या जो है वो फॉल्ट आ रहा है, क्या चीज़ आ रही है। अब यही टी वेव के बारे में आ गया कि ये फाइनल वेंट्रिकुलर कम्प्लेक्स बनाता है और टी वेव क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा था। काजेज इसके वही है, रीपोलराइजेशन हो रही है, इसका ड्यूरेशन और एम्पलीट्यूड आप लोग देख रहे हैं।
सही है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, एक यू वेव भी होती है। आपने कभी पहले तो यू वेव के बारे में नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने भी आपको स्टार्ट पे यही बताया कि हमारे पास जो है वो पी क्यू आर एस टी, ये बस ये 5 जो है वेव्स मैंने आपको बताई हैं, ठीक है ना। और यू वेव नहीं बताई है। एक्चुअली यू वेव ना ही ईसीजी पे आपको नज़र आती है, ना ही ये होती है। बट ये यू वेव हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिपोलराइजेशन होती है पेपिलरी मसल्स की। पेपिलरी मसल जब मैंने हार्ट आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था ये क्या होते हैं, ठीक है ना। तो ये नज़र नहीं आता ईसीजी पे, इसलिए हम इसको काउंट भी नहीं करते हैं। बट ये होता है यू वेव, जो रिप्रेजेंट करता है पेपिलरी मसल्स की रिपोलराइजेशन को। बट ये ईसीजी जब आप करवाने जाएंगे तो आपको उसमें यू वेव आपकी नज़र नहीं आएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चीज़ पे हम लोग चलते हैं, जो कि हमारे हैं सेगमेंट्स और इंटरवल ईसीजी के ना। तो मैंने आपको बताया है कि इंटरवल 3 होते हैं। एक पी से आर तक का इंटरवल था, एक हमारे पास क्यू से टी तक का इंटरवल था, क्यू टी इंटरवल, और एक हमारे पास आर टू आर इंटरवल था, ठीक है। एक आर से आर, एक पी आर तक, ठीक है, पी आर टू आर और क्यू टी। एस से टी तक जो है वो इंटरवल बनता है हमारे पास सेगमेंट का, वो इंटरवल नहीं है। सो अब हम इन्हीं इंटरवल्स को देखने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारे पास इंटरवल आता है ना, कहाँ गया, यस, पी टू आर इंटरवल आता है। सो दिस इज द इंटरवल बिटवीन द व्हाट योर पी एंड योर आर इंटरवल, ठीक है। क्यू इसके दरमियान आता है। सो पी टू आर इंटरवल सिग्निफाइज दैट द आर्टेरियल डीपोलराइजेशन। तो यहाँ पर हो क्या चीज़ रही है, यहाँ पर आर्टेरियल की डीपोलराइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। So yes, arterial depolarization हो रही है और conduction of impulse by the SA node. So now here SA node is going to conduct your impulses. It also has its duration. You have to revise that it duration is from 0.12 to 0.2 seconds is duration. Okay. Now we move on to the next interval, which is the QT interval. So this is the interval between your Q and a T wave. So the duration for this interval is from 0.4 to 0.42 seconds. Now the last interval is R to R interval. So this is the time interval between the two consecutive R waves. Okay, first R wave and then the second R wave. So the duration of this is equal to the one cardiac cycle. Okay, so the time taken between the two R waves is equal to one cardiac cycle. So the duration is for 0.8 second, and this is the important one point, that the one cardiac cycle is going to take your duration of what, 0.8 second, and R to R interval is also 0.8 seconds. So it is calculated by the measuring of number of R waves per second. So now we can calculate by we can calculate heart rate by your R to R interval. If you want to calculate your heart rate, you have to measure the number of R waves you are producing per unit time. Okay, so here it is written कि अगर आप आर वेव्स को काउंट कर लेते हैं कि एक यूनिट टाइम में कितनी बन रही हैं, तो आप इससे अपना हार्ट रेट और उसकी जितनी भी वेरिएबिलिटी वो शो कर रहा है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा आज का चैप्टर, और आई थिंक कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको लोगों को जो टाइम इंटरवल्स हमने देखे हैं, जो इतने सारे टाइम इंटरवल हमने देखे हैं, हम लोग उनको याद कर लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग उसी डायग्राम के ऊपर, उस डायग्राम के ऊपर हम लोग ड्रॉ करके सारे इंटरवल्स याद करेंगे। सबसे पहला जो इंटरवल था वो पी वेव ने लिया था, और पी वेव का जो ड्यूरेशन है, पहले मैं ड्यूरेशन सारे बता रही हूँ। तो पी वेव का ड्यूरेशन कितना था, 0.1 सेकेंड्स का। मैं यहाँ लिखती जा रही हूँ, ठीक है, पहले, और फिर हम ज़बानी भी लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टाइम इंटरवल लिया था क्यू वेव ने। क्यू वेव ने कितना लिया इंटरवल, इसने मतलब इसका ड्यूरेशन इस पूरे का क्यू आर एस, इस पूरे का जो ड्यूरेशन हमारे पास आया था वो आया था 0.08 से लेकर 0.1 यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, ठीक है, 0.1 सेकेंड्स तक का। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट जो इंटरवल लिया था वो हमारे पास टी वेव ने लिया था, और टी वेव का कितना है हमारे पास ड्यूरेशन, 0.2 सेकेंड्स, सही है।
उसके बाद आगे इंटरवल्स आते हैं P2 इंटरवल्स के, ठीक है ना। अच्छा, सेगमेंट्स भी मैंने आपको नहीं पढ़ाया, सो सॉरी, मैं उसको फॉरगेट कर गई थी, मैं अभी आपको पढ़ाती हूँ ये, ठीक है। तो सबसे पहले ये है ड्यूरेशन, सो इनको याद करते हैं। तो P का कितना है 0.1, T का क्या है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्या करो मल्टीप्लाई बाय 2, 0.2 सेकेंड्स हो जाएगा, ओके। और इसको आप लोग जो है वो रटाई कर लेंगे, ठीक है। ये 0.1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0.2 सेकेंड टी का हो गया। ये जो है वो 0.08 से लेकर 0.10 तक आ जाता है, ठीक है ना। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ इसके जो इंटरवल्स हैं वो ड्यूरेशन वो याद हो गए होंगे। अगर हम ड्यूरेशन या एम्पलीट्यूड की बात करते हैं तो टी वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास 0.3 मिली वोल्ट आ जाता है। अब एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करेंगे तो हर वेव का अलग है, मतलब वहाँ पर तो हमने क्यू आर एस कम्प्लेक्स का एक ही ड्यूरेशन पढ़ा है, जबकि यहाँ पर एम्पलीट्यूड हर वेव का अलग है। जैसे क्यू का एम्पलीट्यूड जो है वो हमारे पास 0.1 से लेकर 0.2 तक है, आर का जो एम्पलीट्यूड है वो 1 तक है। और अगर आप लोग बात करते हैं एस का तो उसका 0.4 तक का है एम्पलीट्यूड, ठीक है। सो ये एम्पलीट्यूड भी जो है वो आपने याद रखने हैं। ये जो एस है वो 0.4 है, एस में से 1 माइनस कर देंगे, -1 कर देंगे तो वो 0.3 टी का बन जाएगा। और जो क्यू वेव है वो 0.1 से 0.2 तक आता है, फिर 0.4 और फिर 0.3 और ये 1 आ गया, ये पूरा 1 आ गया, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हो गई। अब उसके बाद लास्ट में अब मेरे साथ आप लोग करें, कितना था ड्यूरेशन पी वेव का। पी वेव का ड्यूरेशन मैं पूछ रही हूँ, एम्पलीट्यूड नहीं पूछ रही, तो वो कितना था 0.1। 0.1 को किससे मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई बाय 2, तो टी का हमारे पास ड्यूरेशन बना था 0.2 सेकेंड्स। क्यू आर एस वेव का कितना था 0.08 से लेकर 0.1 तक का था, ठीक है। ये थे सारे ड्यूरेशन। अब एम्पलीट्यूड मैंने अभी आपको याद करवाया है, तो आर का 1 था, एस का कितना था 0.4, 0.4 माइनस 1 0.3, क्यू का कितना था 0.1 से लेकर 0.2 सारा ये ले गया। और पी वेव का कितना था एम्पलीट्यूड, पी वेव का तो एम्पलीट्यूड मैं आपको बताना ही भूल गई। हाँ, पी वेव का एम्पलीट्यूड है 0.4 से लेकर 0.42 तक, ठीक है। पहले 0.4 लिखो, उसके बाद 0. मतलब जितना एस का है ना वही पी का है, और बस आगे आपने 2 और लिख लेना। सो ये सारे एम्पलीट्यूड और ये सारी चीज़ें आ गई। अब मैं इंटरवल्स के जो ड्यूरेशन आते थे ना वो मैं आपको बता देती हूँ। जो पी से आर का ड्यूरेशन है वो 0.12 से लेकर 0.2 सेकेंड का है। ये पी से आर इंटरवल है, इसका कितना है 0.12 से 0.2 सेकेंड्स तक का है। क्यू टी का इंटरवल 0.4 से क्यू टी कहाँ है, ये रहा, तो इसका है 0.4 से लेकर जितना इंटरवल एस का था ना ये बिल्कुल उतना ही जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगर आर से आर इंटरवल का आपने देखा था तो वो बनता था 0.8 सेकेंड, जो पूरे कार्डियक साइकिल का होता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो क्यू आर का कितना है 0.12 से 0.2, क्यू टी का कितना है 0.4 से 0.42, और यही वैल्यू आती है आपके पी वेव की उसकी ड्यूरेशन की, ठीक है। और आर का 0.8 सेकेंड तक का आता है। सो नाउ अब मैं आप लोगों को पढ़ा देती हूँ एस टी सेगमेंट, ठीक है। ये हम लोग जो है वो छोड़ गए थे। तो एस टी सेगमेंट ये टाइम इंटरवल है बिटवीन द एस एंड द टी। सो एस टी का जो अगर आप लोग नॉर्मल ड्यूरेशन देखते हैं तो वो 0.08 सेकेंड्स तक का है, ठीक है। 0.08 सेकेंड्स तक का इसका टाइम इंटरवल आ जाता है। ड्यूरेशन आप लोगों ने इसका देख लिया, और बाकी इसमें क्लिनिकल सिग्निफिकेंस और इस चीज़ को आप लोगों ने नहीं देखना, ठीक है। सो दैट्स ऑल आज अबाउट द टुडेज लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को ये सारा लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। मैं एक दफ़ा फिर आपको इसकी रिवीजन करवा देती हूँ। सबसे पहले हमने देखा कि ईसीजी क्या चीज़ है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हमने कहा कि इट इज़ अ टेक्निक यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। और हमने कहा व्हाट इज़ द डिस्कवर ऑफ इट, विलियम जो है डिस्कवर इट एंड ही इज़ द फादर ऑफ ईसीजी, ओके। Then we discuss what is the electrocardiograph. Electrocardiograph is the instrument which is used to measure the electrical activity of your heart. Then at the last we discuss electrocardiogram. Electrocardiogram is the what it is the record. It is the it is the graphical registration or the record in which you are going to record your what ECG wave, okay.
Then at the last we have electrocardiographic grid, which is the paper on which you are recording your ECG. So paper में क्या चीज़ थी, then that it has horizontal and vertical lines at the distance of 0.1 millimeter, and it also has what one thickened line at the distance of 5 millimeter. Then we discuss what are the waves and what are the अच्छा हमने यूजेस भी देखे थे इसमें ईसीजी के कि हार्ट की रेट, हार्ट की डिजीजेस, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, हार्ट अटैक, पुअर ब्लड फ्लो, तो इन सब की ये डिजीजेस भी बता रहा है। इसके अलावा अगर हम लोगों ने वेव और नॉर्मल वेव्स की बात की तो वेव्स कितनी थी, PQRST ये वेव्स थी। एथन ने इनको नाम दिया था। फिर उसके बाद कम्प्लेक्सेस कितने हैं, आर्टेरियल कम्प्लेक्स, इनिशियल वेंट्रिकल कम्प्लेक्स, फाइनल वेंट्रिकल कम्प्लेक्स, वेंट्रिकल कम्प्लेक्स। आर्टेरियल कम्प्लेक्स पी वेव ने बनाया, इनिशियल वेंट्रिकल कम्प्लेक्स QRS वेव ने बनाया, फाइनल वेंट्रिकल कम्प्लेक्स टी वेव ने बनाया, वेंट्रिकल कम्प्लेक्स QRS टी वेव ने बनाया। इंटरवल्स की बात करते हैं तो P to R, Q to T और P to R to R, और अगर हम सेगमेंट्स की बात करते हैं तो S to T। ठीक है। आर्टेरियल कम्प्लेक्स में पी वेव आती है, इट इज़ फर्स्ट ईसीजी वेव, पॉजिटिव है, आर्टेरियल डिपोलराइजेशन और ये टाइम ड्यूरेशन इसका कितना है, यस 0.42 सेकेंड्स तक का है। पी वेव का ड्यूरेशन है 0.1 सेकेंड्स तक का, और ड्यूरेशन है 0.1 से 0.12 तक, 0.1 से 0.12 तक। फिर QRS वेव का हमने बताया कि कौन इसमें से पॉजिटिव है, यहाँ पर वेंट्रिकल्स की डिपोलराइजेशन हो रही होती है, और इसके अलावा इसका ड्यूरेशन 0.8 से 0.12 तक का है। Q वेव की एम्पलीट्यूड 0.1 से 0.2, R का 1, S का 0.4, T का 0.3। ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोगों ने देखा है इसका एम्पलीट्यूड और टी वेव किससे बन रही है, ये पॉजिटिव है, रिपोलराइजेशन वेंट्रिकल्स की वजह से। यू वेव पेपरी मसल की रिपोलराइजेशन की वजह से बनती है। इंटरवल्स देखा थे हमने तो उससे कहा उसके दरमियान में जो इंटरवल्स आते हैं उस इंटरवल्स और PR इंटरवल में क्या हो रहा है, आर्टेरियल डिपोलराइजेशन हो रही है। क्यूटी वेव में वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन हो रही है, और R to R इंटरवल ये टाइम इंटरवल है बिटवीन द टू कंसेक्टिव R वेव्स, और इसका ड्यूरेशन 1 कार्डियक साइकिल के इक्वल आ जाता है। और अब हार्ट रेट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय मेजरिंग द नंबर ऑफ R वेव्स पर यूनिट टाइम, और उसके टाइम ड्यूरेशन कितना है टोटल 0.8 सेकेंड्स का। तो टोटल जो आपका टाइम ड्यूरेशन एक कार्डियक साइकिल लेता है उसका भी 0.8 सेकेंड्स तक का होता है। सो आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। मैंने डायग्राम्स के ज़रिए से आपको सारा समझाने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसको ज़रूर आंसर दूँगी। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और इसके अलावा वीडियोस को वॉच करते रहें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉपरेशन, फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, एंड मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।